آج کا دور بہت ترقی یافتہ دور ہے، آج کا دور بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، آج آپ کو ہر گھر میں موٹر سائیکل ملیں گی، اکثر گھروں میں کاریں ملیں گی۔ آج سے 30-35 سال پہلے پلٹ کر کے جائیے، کسی کسی کے گھر میں سائیکل ہوا کرتی تھی۔ پہلے اگر کوئی اپنے گھر میں سائیکل خرید کر کے لے آتا تھا تو پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ آج میں 4 لاکھ کا بلٹ خرید کر کے لے آؤں تب بھی میرے گھر میں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ اے لوگوں، آج میں اپنے گھر میں پلنگ بنوا لوں پھر بھی میرے گھر میں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ میرے دوستو، آج وجہ کیا ہے؟ انسان کوئی چیز کہیں پر دیکھنے کیوں نہیں جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے۔ حضرات، آج انسان کے پاس پیسہ ہے، آج انسان کے پاس دولت ہے، پہلے اتنا پیسہ نہیں تھا۔ حضرات، پیسہ ہے انسان کے پاس، دولت ہے انسان کے پاس، لیکن دولت جس مقصد کے لیے کمائی جاتی ہے وہ مقصد کیا ہے؟ پیسہ جس مقصد کے لیے کمایا جاتا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ تو سنیے، پیسہ اس لیے کمایا جاتا ہے تاکہ میرے بچوں کی زندگی سکون سے گزر جائے۔ اے لوگوں، دولت اس لیے کمائی جاتی ہے تاکہ میرے بچوں کی زندگی سکون سے گزر جائے۔ اے لوگوں، دولت دی اللہ نے، پیسہ دیا اللہ نے، لیکن انسان کو سکون نہیں ملا، تو پھر سکون ہے کہاں؟ تو آؤ سنو، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا سکون ہے کہاں؟ تو اس نے کہا مولانا سکون تو اس کے پاس ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے۔ پھر میں نے شہر کے سب سے بڑے امیر سے پوچھا تیری امیری کا چرچا ہے، تیری رئیسی کا چرچا ہے، تیرے شہر میں جگہ جگہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، بتا تو بہت سکون میں ہوگا۔ اس نے کہا مولانا جب تک دولت نہیں آئی تھی اسے پانے کے لیے پریشان تھا، مگر جب سے دولت آئی ہے اسے بچانے کے لیے پریشان ہوں۔ اے لوگوں، کسی نے کہا سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس جوان اولاد ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے بات کی جن کے 3 بیٹے جوان تھے، بتاؤ تمہارے پاس جوان اولاد ہے کیا سکون میں ہے؟ انہوں نے کہا مولانا جب تک اولاد نہیں تھی میں نے کوئی عالم نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہیں کرائی، کوئی پیر نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہیں کرائی، مگر جب سے میری اولاد جوان ہوئی ہے اور جب سے وہ موبائل کا دور چلا ہے اب تو میری اولاد موبائل میں لگی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اس اولاد کی وجہ سے بدنامی کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو اے جلسے میں آنے والوں تو پتا چلا اولاد میں سکون نہیں، دولت میں سکون نہیں، پیسہ میں سکون نہیں، حکومت کی کرسی پہ سکون نہیں، دولت پہ سکون نہیں، تو پھر سکون ہے کہاں؟ تو آؤ سنو، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر میں موجود ہے۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے کہا اے قرآن تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اے قرآن تو بتا، آج ہر انسان سکون چاہتا ہے، کالا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، گورا ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے، جوان ہو وہ بھی سکون چاہتا ہے۔ تو قرآن جواب دیا، کان کھول کر سن لے اور دل کی تختی پر نوٹ کر لے، دولت میں سکون نہیں، پیسہ میں سکون نہیں، پاور میں سکون نہیں، حکومت کی کرسی میں سکون نہیں۔ تو قرآن نے جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اے جلسے میں آنے والوں تو پتا چلا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، آج تکلیف ہوتی ہے، آج درد ہوتا ہے، آج ہمارے جوان سے کہا جائے، آج ہمارے بھائی سے کہا جائے میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں مولانا وقت نہیں ملتا، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مسلمانوں پر، بے شک مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بے نمازیوں کا انجام کیا ہے؟ اے لوگوں ذرا توجہ
तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। ऐ लोगों, आज तकलीफ होती है, आज आसानी के साथ कहते मौलाना टाइम नहीं मिलता। ऐ लोगों याद रखना, तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। ऐ लोगों सुनो सुनो, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंग दस्ती से जिंदगी गुजर रही है, परेशान हाल वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से कहा, ऐ सवाल किया, ऐ बताओ तुम्हारा घर क्या रास्ते पर है? उस नौजवान ने कहा हाँ मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। गौसे पाक ने फरमाया ऐ शख्स जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो शख्स बड़ा हैरान है कि न वजीफा दिया न कोई ताबीज दिया, बस पर्दा डालने का हुक्म दिया। आखिर बात क्या है? ऐ लोगों वो शख्स जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाला। कुछ ही अरसा गुजरा था, कारोबार खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत व बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंग दस्ती चली गई। जलसे में आने वालों तो वो शख्स कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीरान पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और कहता सरकार आपने ना ताबीज दिया न कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, बरकत हो जाएगी। और यकीनन पर्दा डालते ही ढेरों की बरकत हुई। हमारे पीर आखिर पर्दा डालने में राज क्या था? लोगों सुनो सुनो, गौसे पाक ने फरमाया ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है और लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी और जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाती है तो उस जगह से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे ताकि तुम्हारा घर बेनमाजी की निगाह से महफूज हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नमाज न पढ़ने वाले की निगाह में कि किस कदर बेबरकती और नहुसत के आलम ये है, तो अब मुझे बताओ जिस घर में बेनमाजी ही रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? ऐ लोगों आप ही अदल करो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बेनमाजियों का अंजाम क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते हैं, जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो घर से बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला से कहते हे अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म करते, इसका खात्मा करते। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ऐ लोगों अब जरा तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक यानी तमाम वलियों के सरदार फरमाते हैं बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ और दूसरी जगह फरमाते हैं बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके। आखिरी बात या मेरे भाई, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अब मैं अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों आज मेरे जुमले को कान खोल के सुने, ये मेरे दिल की आवाज है। आज हमारी माँ बहनों से कहा जाए मेरी माँ बहनों नमाज तो अदा कर लो, तो मेरी माँ और बहनें बहुत आसानी के साथ कह देती है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरी माँ बहनों सुनो, बेनमाजियों का अंजाम क्या है क्या आपको नहीं मालूम? मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। ऐ लोगों सुनो सुनो, एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। मेरी माँ बहनों पर्दा नशीं सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। इब्ने अबी दुनिया ने उमर बिन दिनार से रिवायत किया कि मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई। जब वो अपनी मुर्दा बहन दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। ऐ लोगों जब उसे सब लोग दफन करके
आए तो उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। जब उसके भाई गए तो उसके भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुंचा और माँ से पूछा, माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी कि इसे कब्र में इस तरह दर्दनाक अजाब हो रहा है। जब माँ ने सुना कि बेटी की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, उसकी भी आंखें अश्के पार हो गई और उसने रोते हुए कहा, बेटा सुनो, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती रहती थी और नमाजें उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ा करती थी। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, नमाज तो पढ़ती थी मगर वक्त की पाबंदी। मेरे भाई, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। मेरे नौजवानों, कान खोल के सुनो, मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों, कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मौत का कट्टा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ये मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के 4 पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हत्या ली है। अरे तू कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले, कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग घर हूँ, बड़ा छोटा सा घर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ये मेरे अंदर आने वाले, काश अगर तुझे मेरे अंदर के पिछों का पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। मेरे अंदर जो सांप है अगर उनका पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। ए महफिलों में ठट्टे मारने वाले, ए कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, ए शख्स जिंदगी की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, ए कव्वाली मुकाबला सुनने वाले, ए औरतों की डांस पार्टियां देखने वाले, ए मेलों ठेलों में चक्कर छोले चलने वाले, ए गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में घूमने वाले, कान खोल के सुन ले, जिंदगी एक किराए का करना है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ नौजवानों, क्या आपको नहीं मालूम, मेरे ताजुश्शरिया ने हम लोगों को बता दिया, क्या बताया? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिससे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहो बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, अगर तुम आशिक़े रसूल बन के कब्र में जाओगे, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका है, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मेरे सरकार है, जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी के रिज़ा के लिए क्या है। फरिश्ते कहेंगे फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। नौजवानों सुनो, अगर तुम दिल से नबी से मोहब्बत करके इस दुनिया से कब्र में जाओगे, कब्र में फरिश्ते तशरीफ लाएंगे, सवाल करेंगे मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है, ना दीनू का, तेरा दीन क्या है। ऐ लोगों, जब बारी आएगी, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ तू इनके बारे में क्या कहता था, जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है, बताओ इनके बारे में क्या कहता था। मेरा दिल बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है। तुम कहोगे फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुन, मैं दुनिया में रहकर कहता था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबे मुहिब्बे, नहीं मेरा तेरा। और फरिश्तों, मैं तो डंके की चोट पर कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान।